My name is Shambhavi Mishra. I am an IPS officer of 2019 batch, posted in Assam. My journey started actually since the last year of college. My father used to work in a small place called Jagdishpur, and there was a company, a fertilizer industry, Indigo Fertilizers. So, what I was saying that my father used to work there, so I used to study there only. There's in school. Aditya Birla Public School. I studied till 12th. Thereafter, I went to a private college in Kanpur. After that, I joined Infosys for a short period of time. I was in Hyderabad. After Infosys, I left my job and I came back for preparing. I started my preparation. I stayed in Delhi actually, and I did my coaching there only. So I started preparing, and after preparation, during my first attempt only, I also got selected in Union Bank of India, so I joined there as well as a probationary officer, as an assistant manager, and later on, I started working there. And after working, I simultaneously gave my exam. So in my first attempt was in 2017. So I got till the stage of interview, but I could not clear the exam. I wrote mains in my first attempt. I didn't give the interview. During my second attempt, I was still working in the bank, but in the second attempt, I got 199 rank and I got into IPS. I got Assam cadre. Thereafter, I joined Labasna. I did my foundation course. After that, I took two simultaneous EOLs to give the exam again. In the 2021 attempt, I scored in 116 rank, but again, I'm continuing in my IPS in Assam only as of now because again, I got into IPS only my second time also. So this was my journey in short. Now I just want to tell you all about my strategy. How did I started preparing and what motivated me and what not. So going ahead, I'll address your questions. But before that, आपका छोटा छोटा मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि आपको how should you prepare. So I have a tentative list which you might be interested in. So yeah, when you are very new, starting from the very beginning, I always say this to all the aspirants I address that your फाउंडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपका नींव मजबूत होना जरूरी है. तो जब अब घर बनता है कोई आप देखेंगे तो अराउंड 70 to 80% ऑफ टाइम और एफर्ट आपका फाउंडेशन बनने में लगता है घर का. उसके बाद दीवारें खड़े होके पेंटिंग होके एवरीथिंग गेट्स रेडी इन विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स. लेकिन आपका 7 to 8 मंथ्स क्रूशियल टाइम पीरियड फाउंडेशन में जाता है. एंड फाउंडेशन का स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही आप बड़े से बड़ा घर खड़ा कर सकते हैं. सिमिलर थिंग गोज फॉर यूपीएससी एज वेल. सो अंटिल एंड अनलेस आपका फाउंडेशन मजबूत है, जब तक आप स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपका काम अच्छे से नहीं होने वाला है. तो सुपर फ्लो स्टडी करने के बजाय द एस्पिरेंट हु इज स्टार्टिंग टू प्रिपेयर, आपका सबसे पहला काम है अपना फाउंडेशन मजबूत करना. व्हाट डू आई मीन बाय फाउंडेशन? By foundation, I mean obviously you should be thorough with the syllabus. What is the requirement of UPSC? You must be knowing. आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी आपसे मांग क्या रहा है, आपसे जानना क्या चाहता है. तो आपका सिलेबस आपको थरली पता होना चाहिए. पहली चीज तो सिलेबस बार बार पढ़िए ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगे. उसके बाद पिकअप अ न्यूज़पेपर. देयर आर टू गुड न्यूज़पेपर्स आई वुड सजेस्ट, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो इन इंग्लिश. अदरवाइज हिंदी में आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट. बट इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर आप पकड़ सकते हैं. यू शुड रीड द न्यूज़पेपर थरली. आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए क्योंकि इनिशियल टाइम पीरियड में इट विल टेक अराउंड 1-1.5 आवर. इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग. आपको बहुत टाइम लगेगा न्यूज़पेपर खत्म करने में, स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट. यू शुड स्टडी दैट. तो वो टाइम टेकिंग होगा, एफर्ट लगेगा, बट अगेन दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल क्योंकि आपका डेप्थ वहां से होना स्टार्ट होगा, आपको पता चलना स्टार्ट होगा. देन देयर आर सम बेसिक बुक्स. ऑलमोस्ट एवरीबडी आपको, हर कोई वो बेसिक बुक सजेस्ट करेगा. ऑब्वियसली एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम 6th to 12th के आपका एनसीईआरटी, एंड देन आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई बुक आपकी है. तो टॉपर्स ने आपको बता ही दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मीकांत है आपकी. तो पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत रियली रियली गुड बुक. आई रेड इट माई सेल्फ. तो आपको पढ़ना चाहिए डेफिनेटली. सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए. बिपिन चंद्रा एंड ऑल की बुक है.
उसके बाद कुछ अलग बुक्स भी हैं, लाइक स्पेक्ट्रम एंड ऑल आर आल्सो गुड, यू कैन ऑब्वियसली स्टडी दैट। तो हर एक सब्जेक्ट में देयर आर सर्टेन गुड बुक्स एंड सर्टेन गुड वीडियोस आल्सो। तो अभी का टाइम में क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू वीडियोस, जिसमें आपको बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाता है, बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर देम ऑल्सो। कई बार आपको पढ़ने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट लुकिंग एट वीडियोस बिकम्स इजी, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो स्पेशली लाइक आर्ट एंड कल्चर वगैरह में या साइंस के सब्जेक्ट्स में यू शुड गो फॉर दैट। तो आप लोग ये चीज देखिए एक बार कि आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप लोग ये देख अगेन स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से पढ़ के आप हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दीजिए। जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ मत करिए। लाइक आप स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ टाइम पीरियड अपने आप को दिया, एंड बी रियलिस्टिक, बी वेरी रियलिस्टिक। लॉन्ग टर्म प्लान के साथ साथ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाना इज द मोस्ट क्रूशियल, एंड उनको स्टिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर एक साथ सोच लेंगे कि बाय द नेक्स्ट ईयर मैं अगले 6 महीने में सारा खत्म कर दूंगा, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए एंड छोटा छोटा डेली गोल्स फिनिश करिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा टारगेट है कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं लक्ष्मीकांत के 10 चैप्टर खत्म कर लूंगी, तो उस 10 चैप्टर में से बाय टू नाइट मुझे आज कितना करना है, एंड गिव योर सेल्फ छोटा छोटा इंसेंटिव फॉर दैट। एंड अगेन ये खत्म करने के साथ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। रिविजन इज द की टू सक्सेस। अब जितनी बार एक चीज को रिपीट करते हैं, जितनी बार एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, उतना ही वो इम्पोर्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। आई वुड सीरियसली से यू शुड रिपीट इट लाइक 40 to 50 टाइम्स एटलीस्ट। जिन लोगों को लगता है कि मुझे रट्टा नहीं जाता है, मेरे को भूल जाता हूँ मैं, मेरे को याद नहीं रहता है चीजें, आप बार बार सेम कंटेंट पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। इनफैक्ट इन करंट अफेयर्स एज वेल, अगर आपने वो चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी है, देन आपने वो डेली करंट अफेयर्स में मंथली में भी पढ़ा है, एटलीस्ट वो चीज आपके आंखों के सामने से 3 बार 4 बार 5 बार गुजर चुका है, तो कहीं ना कहीं इट विल बी स्टक टू योर हेड, कहीं ना कहीं आपका दिमाग में छाप छोड़ जाएगा, तो वो बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, अपना सारे सब्जेक्ट्स को टाइम में डिवाइड करना है, हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देना है। जिस सब्जेक्ट्स में आप अपना देखिए, किसी और का फॉलो मत कीजिए। आप जिसमें वीक हैं, आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, उसमें आपको रिलेटिवली कम टाइम लगेगा। जिसमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आप वीक हैं, उसको ज्यादा टाइम दीजिए अकॉर्डिंगली। उसके बाद कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिए। रिविजन में अगेन आप यू कैन गो बैक ऑलवेज। तो ये स्ट्रैटेजी है इनिशियल टाइम की, जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वंस योर फाउंडेशन गेट स्ट्रॉन्ग, आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद आप बोल रहे थे कि प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी क्या अलग अलग करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो आपको पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चलनी चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है फॉर यूपीएससी एग्जाम। डेफिनेटली अलग अलग रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स अलग है फॉर मेंस, तो आपको सेपरेट तैयारी करनी पड़ेगी दोनों चीजों की। प्रीलिम्स करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव। आपको यस या नो पता होना चाहिए उस चीज में, एक्यूरेट आंसर्स पता होने चाहिए। एंड अभी जैसा यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है डे बाय डे, तो इनिशियली तो आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत कुछ कर पाते थे, अभी नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजें, बट स्टिल दैट इज अ वेरी यूजफुल मेथड। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन सेंस। बहुत चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व करने से हो जाएंगी। तो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे, आपने कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ा होगा, हो सकता है आपने स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो कहीं पे भी, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ आपको उसका बैकग्राउंड में डेफिनेटली पता होगा। अगर आपने वो चीज अच्छे से कर ली, अच्छे से सोच समझ लिया, तो हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर प्रीलिम्स। ये एग्जाम पेपर आप लोग मैं क्या करती थी, आई यूज टू गेट ऑल दीज ये टेस्ट सीरीज वगैरह अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से। देन दैट टेस्ट सीरीज का मैं 2 घंटे का टाइमर लगाती थी। आई यूज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एटलीस्ट आई यूज टू ट्राई कि मैं कम से कम 1 से 2 बार में वो पूरा कंप्लीट कर लूं। वो खत्म करने के बाद आई यूज टू चेक माई सेल्फ कि मेरा कितना आंसर सही आ रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। उसके बाद आई यूज टू गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो ये आप खुद का सेल्फ भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स करने के लिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ रहा है, आप फोन से सीखना पड़ रहा है, या किसी टेस्ट सीरीज को लेने की जरूरत है, आप खुद से कर सकते हैं। खुद का टेस्ट ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रीलिम्स इज इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स आपसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो बहुत सारी चीजों में आपको फैक्चुअल डेटा, फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपको स्पेसिफिकली एटलीस्ट 2 to 4 months
डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपको देना चाहिए. इफ यू आर अ बिगिनर, यू शुड गिव मोर टाइम टू प्रीलिम्स, बिकॉज आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने पे यू कैन नेवर गो टू द सेकंड लेवल मेंस. तो इनिशियल स्टेज से एकदम आंसर राइटिंग करके आप कर लेंगे तो भी यू विल नॉट गेट टू द सेकंड स्टेज इफ यू आर नॉट क्लियरिंग योर प्रीलिम्स. इसलिए प्रीलिम्स को यू शुड गिव टाइम. यू शुड आपको कम से कम प्रीलिम्स के लिए आपको डेडिकेटेडली टाइम देना चाहिए, अराउंड 2 महीने से 4 महीने तक, वेरिंग ऑन योर ओन कैपेसिटी. आपका कितना पकड़ है. अगर कोई तीसरी या चौथी बार दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा पता है, तो उसको उतना टाइम नहीं देने का जरूरत पड़ेगा. बट अगर कोई फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दे रहा है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो फर्स्ट आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस करिए. प्रीलिम्स का इस टाइम के पहले वाले टाइम में ऑब्वियसली आप लोग डेली मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हैं. एक दो आंसर्स आप डेली लिख सकते हैं जस्ट टू गेट इन टू प्रैक्टिस. बट अगेन आपका वो टाइम वाला मैचिंग उस टाइम पे नहीं होगा, आंसर्स में डेप्थ नहीं आएगी. डेप्थ आपका तभी आएगा जब यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, दैट मच ऑफ टाइम, आपको पता होगा जब, तभी आपका आएगा. अगेन सेकंड, उसके बाद एक बार आपका प्री क्लियर हो जाता है, देन यू गो टू द सेकंड स्टेज ऑफ मेंस. मेंस में अगेन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मेंस में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइमली क्वेश्चन पेपर फिनिश करना. तो अगर 20 क्वेश्चन है तो यू शुड आंसर योर 20 क्वेश्चन नो मैटर वॉट. हो सकता है आपको कोई एक क्वेश्चन हो जिसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, स्टार्टिंग में ही हो, स्किप दैट क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट पार्ट. आप कंप्लीट करने के बाद यू कैन गो बैक अगेन टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फिर से वापस जाइए उसी पहले सवाल पर और फिर से उसको करिए सॉल्व. तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. अगर आपको उस बारे में कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी लिख दीजिए. कुछ तो पता होगा आगे पीछे का, जो भी पता है वो लिख दीजिए. यू शुड राइट समथिंग एटलीस्ट, बिकॉज एग्जामिनर विल मोस्टली नॉट गिव यू मार्क्स इन नेगेटिव. आपको कुछ तो देगा, ही विल गिव यू एटलीस्ट 0.5 मार्क्स, 1 मार्क, उसका मूड अच्छा हुआ तो दैट विल ऑल्सो एड अप योर स्कोर. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फिनिश द पेपर फर्स्टली. Secondly, interlinkages are very important in mains. So it's not like very restrictive. So let's say you're doing a history question and there is some topic which refers to international relations or politics or environment. If you know something from there or economics, you should put in that answer as well. आप आंसर्स को इंटरलिंकेज की, इसमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक आंसर आता है और मुझे लगता है ये सब्जेक्ट में पूछा तो मैं इसी सब्जेक्ट का आंसर दूंगा, दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं रखूंगा. आपको उस आंसर के बारे में जहां से जो भी जैसे भी पता है उसको मॉडिफाई करके जिस टर्म में पूछा गया है उस टर्म में जवाब देना है. अगर आपसे वो पॉलिटिकल टर्म्स में पूछा गया तो आपको पॉलिटिकल तरीके से जवाब देना है, पॉलिटिकल टर्म्स में जवाब देना पड़ेगा. लेकिन ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट कंटेंट ऑलवेज. तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, यू शुड हैव सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोटेड डाउन, जिसको आपको एकदम रट लेना है. जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारा फैक्चुअल डेटा होता है, वो सब आप रट लीजिए बिल्कुल ही प्रॉपरली. आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है. आप उसको बहुत ज्यादा हैंडी यूज कर सकते हैं. इन योर एसेज आप यूज कर सकते हैं, इन योर आंसर राइटिंग्स आप यूज कर सकते हैं. बहुत सारी जगह पे आप सेम डेटा यूज कर सकते हैं. तो कुछ डेटा रिगार्डिंग ऑल द सोशल मैटर्स, जैसे कि वुमेन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, जनरल पॉपुलेशन पैटर्न है, एनवायरमेंट के बारे में, हर एक चीज के बारे में छोटा छोटा डेटा आप कलेक्ट करके हैंडी रखिए. उसको आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, नया डेटा आने पे अपडेट करते रहिए. और याद रखिए, कुछ कुछ रिपोर्ट्स हमेशा रखिए हैंडी, ये आपका मेंस में बहुत काम आता है. ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स, जो एग्जाम के जस्ट पहले आप एक बार रिवाइज कर सकें. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर गोइंग टू द एग्जाम ऑब्वियसली अच्छा खाना एंड बीइंग हाइड्रेटेड इज इम्पोर्टेंट, बीइंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट. नहीं तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार 7 दिन, कई बार लगातार 5 दिन यू हैव टू राइट. पूरा टाइम आपको सुबह शाम पेपर लिखना पड़ेगा, 3 घंटे लगातार. यू हैंड स्टॉप वर्किंग लिटरली. तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, कि एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. तो यू हैव टू बी एट योर अटमोस्ट एफिशिएंसी उस 3 घंटे में फॉर गुड रिजल्ट्स. तो इसीलिए मेंस का एक सेपरेट प्रिपरेशन करिए. मेंस के लिए ये डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंकेजेस इंपॉर्टेंट है. एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंस. आपका कोई भी आंसर हो, हमेशा आपको कितना भी आप उसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट का भी मांगा गया हो, तब भी ऑलवेज एंड इट इन अ पॉजिटिव नोट और गिव अ हैप्पी स्लोगन इन द एंड, और एटलीस्ट शो दैट समथिंग इज पॉजिटिव, बिकॉज यू आर गोइंग टू कम इन द गवर्नमेंट. आपको यूपीएससी एग्जाम दिलाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप सरकार में आए. सरकार को पॉजिटिव सोल्यूशन गिवर्स चाहिए, नैगर्स नहीं चाहिए. नैगर्स हर कहीं है, हर कोई नैगिंग करता है, हर कोई बोलता रहता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. हमको सोल्यूशन ढूंढने वाला आदमी चाहिए. तो अगर आप सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं किसी चीज का,
वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर आपका आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए कोई चीज कितनी भी डार्क हो, ऑलवेज देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमेशा ये चीज इंश्योर करिए कि आपके आंसर्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आए, या आप उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें। देन देयर आर सर्टेन पेपर्स विच आर लिटरली आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। सो ऑल द जीएस पेपर्स, ये डिफिकल्ट होता है टू स्कोर इनमें। तो आपका ऐसे ऐसे इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर। अगर आपका ऐसे में आपने अच्छे से मेहनत किया है तो यू विल स्कोर वेल। आजकल ज्यादातर फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, तो बिहाइंड एवरी फिलोसफिकल एसे ऑल्सो बेसिकली बहुत छोटी सी प्यारी सी बात बोल रहा होता है, आपको उसका जिस्ट या मीनिंग निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आप अलग अलग तरह के एसेज प्रैक्टिस करिए, उसको गेट इट एवेल्युएटेड, देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसे करना चाहिए एसेज में। अगेन एथिक्स का पेपर, एथिक्स इज ऑल्सो वेरी कैची, वेरी स्कोरिंग। एथिक्स में आपका केस स्टडी प्लस उसमें आपको टाइम डिविजन इज इम्पोर्टेंट अच्छा स्कोर करने के लिए। और केस स्टडीज में भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके करिए। गिव अ पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। एकदम इम्प्रैक्टिकल महा एथिकल अप्रोच दे दिया लेकिन इट इज वेरी हाईली इम्प्रैक्टिकल, तो फायदा नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल एज वेल चीजों में। तो आपका एथिक्स का पेपर, एंड देन लास्टली कम्स योर ऑप्शनल। योर ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर ऑप्शनल लिटरली डिसाइड्स विल यू बी इन द लिस्ट और नॉट। तो आपके ऑप्शनल के मार्क्स का बहुत असर पड़ता है। आई माई सेल्फ वॉज अ टॉपर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को जनरली मानते हैं कि इट्स अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज इट इज नॉट अबाउट व्हाट ऑप्शनल आर यू पिकिंग अप, इट्स अबाउट हाउ स्ट्रांग आर यू इन इट। यानी कि आपका ऑप्शनल क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको क्यों चुना, आप उसको कैसे समझ पा रहे हैं। अगर आप उस ऑप्शनल को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, आप उसका गर्थ को समझ पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से ले पा रहे हैं, तो वो अच्छे से काम करेगा आपके लिए। भले वो कितना भी डिफिकल्ट या नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, और कितना भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, बट आप अगर उसके साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आपने पेयर प्रेशर में आके ये सोच के कि इसमें तो मार्क्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं इसमें ले लेता हूँ, आपने अगर ये गलती किया, तो इन दैट केस यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट यू आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम इट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ऑप्शनल आप लोग समझदारी के साथ चूज करिए। आप लोग ये देखिए कि क्या ऑप्शनल हम चूज कर रहे हैं, क्या हमें चाहिए, हमें कितना समझ में आ रहा है। देन यू गिव योर प्रैक्टिस टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप आई विल गिव ऑल ऑफ यू इज कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड। बहुत कम चीजें पढ़िए, कम सोर्सेज पढ़िए, बार बार पढ़िए। आई ऑलवेज से दिस, rather देन बहुत ज्यादा पढ़ने का और बहुत कम बार पढ़ने का। तो मैंने 10 सोर्स पढ़ा एक एक बार, लेकिन मैंने दो ही सोर्स पढ़ा 10 बार। मैंने दो सोर्स पढ़ा 10 बार विल ऑलवेज बी मोर इफेक्टिव rather देन रीडिंग 10 बुक्स जस्ट वंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मेमोरी का भी एक एग्जाम होता है। यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड एज वेल। सो ऑब्वियसली गेटिंग द डेप्थ एंड द ब्रेथ बोथ आर इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए आपको बहुत सारा पता होना चाहिए, बट यू हैव टू गेट योर डेप्थ एज वेल। सो डोंट इंक्रीज योर सोर्सेज टू मच, स्पेशली ऑप्शनल में। बहुत ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार सेम चीज को रिपीट रिपीट मोड में पढ़िए। सो दिस इज ऑल फॉर मेंस। देन इंटरव्यू इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो some things can be prepared about it, some things can't be prepared about it. I'll not shed much light on it. मोटा मोटा मैंने आप लोगों को आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ यू कि गोइंग थ्रू दीज स्टेजेस कितना क्रिटिकल होता है। तो अगेन पीवाईक्यू से क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं रिपीट होते हैं कि नहीं, तो यस, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यू शुड एटलीस्ट सोल्व लास्ट 20 years। एक या दो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है, नहीं भी होता है, बट एट टाइम्स इट गेट्स रिपीटेड एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई टेक अप सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। और मैं कुछ चीजें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपके साथ बीच बीच में शेयर करूंगी। सो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली यूपीएससी में। एनसीईआरटी एज आई सेड 6 to 12 आपको करना पड़ेगा एक बार। अगेन हिंदी से इंग्लिश में जाने में क्या डिफरेंस आता है? आई थिंक आप जिस मीडियम में उसमें प्रिपेयर करिए वो बेटर है। आई हैव फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से अच्छा अच्छा रैंक लाके बैठे हैं। तो इट्स नॉट लाइक इंग्लिश मीडियम वाले ही सिलेक्ट होते हैं, हिंदी वाले नहीं सिलेक्ट होते। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसमें प्रिपेयर करिए, क्योंकि दिस इज मोर एन एग्जाम अबाउट योर ओन कंफर्ट लेवल। थर्ड थिंग आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंटली इज स्ट्रेस मैनेजमेंट।
यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। बहुत सारा मेरे खुद के जान पहचान के दोस्त लोग हैं हु आई फील आर वेरी मच टैलेंटेड, वेरी मच डिजर्विंग, बट स्टिल आर नॉट इन द सर्विसेज। उनका नहीं हुआ। तो यूपीएससी इन नो वे इज अ जज कि आप वर्दी हैं या नहीं वर्दी हैं। ऑब्वियसली लक ऑल्सो मैटर्स हेयर समवॉट। आपका मेहनत तो है ही, प्लस थोड़ा शेयर लक का भी है। तो अगर आपका नहीं सिलेक्शन हुआ है तो इतना डिप्रेस होके खत्म हो गया जिंदगी, ऐसा नहीं है। यू ऑलवेज डिजर्व समथिंग बेटर, but you should be very clear for the reasons you are preparing. Yeah, I always say this. Many of us start to prepare just because of peer pressure or because of parental pressure or just because of societal issues. एक हमको लगता है कि सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन मिल जाएगा. These are all the wrong reasons. You should always give your exam, prepare for the right reasons. That is very important. आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, ये चीज मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करती है. You should have your reasons right. क्योंकि मेहनत आपको करनी है, दूसरा आपको कितना भी पुश करेगा बहुत ज्यादा एक लेवल के बाद नहीं कर पाएगा. यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, यू हैव टू लूज योर स्लीप, लूज एवरीथिंग. आपका फैमिली के साथ आपका टच छूट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा आपका सोशल आउटिंग्स एंड एवरीथिंग. दैट विल ऑब्वियसली भी आपका सोशल लाइफ इफेक्ट होने वाला है इसके बाद. आप वंस यू डिसाइड टू गो फुली इनटू प्रिपरेशन मोड. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर इयर्स, आपका यूथ का टाइम है, आपके यंग इयर्स है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देम, find your own purpose. I always say UPSC is not everything. Everybody has a different calling. People are there. Somebody can become Lata Mangeshkar, somebody can become Sachin Tendulkar, somebody can become a very successful politician or something else, a cook, anything. Whatever you want to become, you should become. आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार दुनिया वाले ये चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं करूँ. आप करना चाहते हो तो आप करो. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर किसी का अलग अलग होता है. सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट करना आपका. टाइम मैनेजमेंट मैंने अगेन आपको बोला कि लॉन्ग गोल्स के साथ शॉर्ट गोल्स आर इम्पोर्टेंट. पर डे आप टारगेट्स बनाइए, पर डे अचीव करने की कोशिश करिए rather देन मंथली टारगेट्स. वो टारगेट्स आप लॉन्ग टर्म में रखिए ओवरऑल कि मोटा मोटा मुझे इतना करना है, बट आज मुझे इतना करना है. आज आज का खत्म करोगे तब भी यू कैन go ahead and complete your monthly targets. If you're not completing your daily targets, this cannot be done. Don't lose your social life एकदम से because you will be too much stressed. तो बीच बीच में keep your one or two good friends जिनके साथ आप बीच बीच में बात करें, अपने आइडियाज एक्सचेंज करें, या बीच में आप कहीं पे घूमने चले जाइए. नॉट अ लॉन्ग ब्रेक बट अ शॉर्ट ब्रेक. सो यू शुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बीच बीच में स्ट्रेस बस्ट करना इज इम्पोर्टेंट. अपना माइंड फ्रेश रखना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू हैव टू गेट सम थिंग्स इन योर हेड. तो आपका दिमाग जो है उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए तो टेक अप न्यू थिंग्स. I'll now address a few of your questions and then in some time I'll log off. So next your जॉब के साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैन यू प्रिपेयर. डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर. आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द जॉब. तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है करना, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप बहुत बार पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो अलॉन्ग विद द जॉब प्रिपेयर, तो यू कैन गो विद इट. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फुल टाइम अटेंशन देना है तो आप फुल टाइम दीजिए. अगेन रेगुलर डिग्री के साथ भी आप कर सकते हैं. आप पढ़ाई वगैरह मतलब अपना डिविजन, आपको टाइम मैनेजमेंट इज द की. टाइम मैनेज जितना अच्छे से कर लेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है. आपको एनसीईआरटी करनी ही चाहिए क्योंकि आपको मैंने जो फाउंडेशन वाला बात बोला था वो एनसीईआरटी से आएगा. जब तक आप फाउंडेशन नहीं अपना अचीव करते हैं तब तक आपको नहीं मिलेगा. ओके. स्ट्रैटेजी आई ऑलरेडी शेयर्ड. एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर से भी नोट बनाने का जरूरत नहीं है. आजकल सब मटेरियल अवेलेबल है, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा. तो आप जो बने बनाए नोट्स हैं उसको यूज करिए, फालतू टाइम में वेस्ट करिए इन सब चीजों पे. मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए आप पहले तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए उसके पहले पहले आप एक दो आंसर्स रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, बट फुल मोड में आपको जाना चाहिए आफ्टर प्रीलिम्स. करंट अफेयर्स के लिए रीड वन न्यूज़पेपर एटलीस्ट. रीड मंथली मैगजीन्स एंड ईयरली मैगजीन्स एज वेल. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सम डेली न्यूज एप्स जो कि आपको एनालाइज करके सेम चीज बता देती हैं, तो आप वो कर सकते हैं. कॉर्पोरेट जॉब के साथ यू कैन प्रिपेयर, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं.
इट डिपेंड्स। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इन सर्विस ओनली, जो कॉर्पोरेट जॉब के छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, एंड दे प्रिपेयर्ड अलोंग विद द जॉब। पीवाईक्यूज आपको आप लोग जब इतना पढ़ लेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल द स्ट्रैटेजीज, सो ये मैंने आपको बता दिया है। हिंदी मीडियम का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पीवाईक्यूज, जस्ट पीवाईक्यूज करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू डू मोर। तो आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, बहुत सारे मेंस के आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर देम एंड यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो और प्रॉपरली इवैल्यूएशन भी कराना चाहिए, बिकॉज आपका आंसर राइटिंग में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू गेट इन टू द फ्लो ऑफ इंट्रोडक्शन, उसका मेन बॉडी एंड उसका कंक्लूजन, हाउ आर यू लिंकिंग थिंग्स, हाउ इज योर फ्लो मेंटेन्ड। तो वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू तक आप पहले तब आइए जब आपका मेंस क्लियर हो जाए। बिफोर दैट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू, आई वुड से। इंटरव्यू इज मोस्टली आपका खुद का एक्सपीरियंस, बिकॉज देर इज अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच यू फिल। आजकल तो आई थिंक प्रीलिम्स के बाद ही भरवा देते हैं आपसे, विच टॉक्स अबाउट योर हॉबीज, टॉक्स अबाउट व्हाट यू हैव डन विद योर लाइफ। एंड मोस्टली जो इंटरव्यू में आते हैं वो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, या तो आपके डैफ से, आपके ऑप्शनल से, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, आपके हॉबीज से। तो इंटरव्यू इज वेरी पर्सनल एंड वेरी स्पेसिफिक। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे डील कर रहे हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यूअर का मूड कैसा है। बट इंटरव्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज जस्ट बीइंग योर सेल्फ एंड बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट। मल्टी डायमेंशनल आंसर्स कैसे लिखना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल आंसर्स का मतलब यही हुआ जो मैंने बोला, कि आपको कनेक्टिविटी लाना पड़ेगा। तो कोई एक हिस्ट्री का टॉपिक होने से भी उसका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल। सो sorry, I just told my sister about the same example, that's why. So talking about Israel, Israel has a history. Israel is connected to something religious as well. Why is Jerusalem important? Why is Jerusalem important for Islam? Why is Jerusalem important geographically? Why is Jerusalem important for Jews? Why was that whole thing happening? This is already again connected with World War II and how Hitler did his genocide. वहां से शुरू होती है कहानी। प्रेजेंट प्रॉब्लम तक आते आते उसकी स्टेजेस पे आएगा। उसका एक डिफेंस का एंगल है, उसका एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल है, उसका एक एनवायरमेंटल एंगल है। सो दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट। सो अगर कोई आपसे सिर्फ इसराइल के बारे में ही पूछ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इसराइल। ठीक है, सिर्फ एक चीज ही नहीं है। तो यू कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट इस पॉलिटिक्स की, यार उसमें तो जूस का वो है। व्हाई इज इसराइल रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड से लेके, मतलब यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट एक सिंगल टॉपिक पे आप एक 1000 वर्ड का ऐसे लिख सकते हैं, और उस टॉपिक को श्रिंक करके 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी तब आएगी जब यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। जब आपको इतना ज्ञान, इतना पता होगा उस टॉपिक के बारे में, तभी आप वो कर पाएंगे। रिविजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू रीड थिंग्स अगेन एंड अगेन। आपको दोबारा बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने, आप अपने शॉर्ट नोट्स रिपीट करिए। द सेम बुक यू शुड रीड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, मल्टीपल टाइम्स। बार बार एक ही किताब को पढ़िए, एक ही कंटेंट को पढ़िए, और एक टाइम आएगा लिटरली वो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको लिटरली याद रहेंगी। 2 ईयर स्ट्रैटेजी से बेटर है आप पहले 1 ईयर की स्ट्रैटेजी बनाइए। आप पहले अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए एंड स्टार्ट टू गिव योर एग्जाम rather देन अ 2 ईयर 3 ईयर स्ट्रैटेजी। डिजिटल नोट्स, ऑब्वियसली कुछ लोग डिजिटल नोट्स में बिलीव करते हैं, कुछ लोग फिजिकल नोट्स में। विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल यू शुड डू दैट। आपको जैसे भी कंफर्टेबल रहना चाहिए आप कर सकते हैं। अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव एंडेड। मेंस पीवाईक्यू कितना साल का? मेंस पीवाईक्यू यू शुड सॉल्व एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। 10 से 15 साल के सॉल्व करिए, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। सो मोटा मोटा मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया। यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। तो आजकल के टाइम में वो है, आप कंटेंट में खो मत जाइए। इम्पोर्टेंट है कि ये मत सोचिए कि सारा कंटेंट है मैं सब देख लूं, आप नहीं देख पाओगे। दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। यू विल ऑलवेज फील अंडर प्रिपेयर्ड, दैट इज द ट्रूथ। आपको एग्जाम के पहले हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट ऐसा सच नहीं है। आपको एक्चुअली आता है, आपने मेहनत किया है अगर उतने टाइम तक, तो आपको याद रहेंगी चीजें जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। लेकिन
एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज नॉट टू पैनिक। वो बहुत हाई प्रेशर का टाइम होता है। इफ यू स्टार्ट पैनिकिंग, आप सब भूल जाएंगे जितना भी आपको आता है, और सारी चीजें, सही आंसर्स को भी आप गलत करेंगे। लेटर ऑन वेन यू विल चेक, आपको लगा ये मुझे तो आता था यार, मैंने फिर भी गलती कर दी, जस्ट बिकॉज यू पैनिक्ड एट दैट टाइम। पैनिक को हटाने के लिए क्या करना है आपको? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट्स, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज अलग अलग सोर्सेस से लेके, आई यूज टू माई सेल्फ डू दैट, टाइम उसमें चेक करके। आप चाहें तो, अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, उसका टेस्ट सीरीज ले लीजिए। लेकिन यू शुड गिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, उससे बिल्कुल मत भागिए। आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको डिमोरलाइज हो फील होगा कि अरे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बट यू शुड ऑलवेज लुक एट योर मिस्टेक्स कि ये गलती मेरे से क्यों हुई, यहाँ पे क्यों गलत किया मैंने, वो चीज को रेक्टिफाई करिए आप। ठीक है। तो आई थिंक कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं, किसी ने मुझे बोला है। आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल की, लेट्स से यू हैव टू क्रॉस अ रिवर। इफ यू आर गुड इन स्विमिंग, you can cross it directly. If you're not good, you should take a bridge. So coaching is like a bridge, makes the journey easier obviously. तो डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कंफर्टेबल है। अगर आपको आता है करना, मतलब आप खुद से आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। एंड अगर नहीं है तो यू शुड टेक अ कोचिंग, विच एवर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। सो आई थिंक आई विल बी एंडिंग इट नाउ। ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, एंड आई विश टू सी अ लॉट ऑफ यू टर्निंग अप फॉर द सर्विस, एंड अ लॉट ऑफ यंग ब्राइट माइंड्स आगे जाके भी, इफ नॉट इन द सर्विस ऑल्सो। आई वांट to see you all, and I wish all my best wishes to you to have good beautiful careers ahead. Thank you so much.